topic. I will just revise it first. Factorization of the expression of the expression of type A4 plus A square B square plus B4. If you are busy somewhere, beta, please reduce your or skip up from that side and concentrate it. This is the revision of the previous topic. This is the revision of the previous topic. If you remember, I have given this topic a name of factoring 4-degree polynomial. From my side, you can write it on page number 101. 101 page you can write there factoring. जो मैंने इसको लिखा था yesterday, factoring polynomial of 4 degree. Factoring polynomial of 4 degree. Right. Here it was written factoring of expression of type. Type mean here if you could find the highest degree is what? This stand for highest degree. Highest degree is 4. Highest degree is, this is first example which we have done yesterday. Highest degree was 4. And similarly, if I have written it like this, factoring polynomial of degree 4, it means also the highest degree is 4. So the highest degree yesterday we have solved question highest degree with 4. Similarly, here what we have done, इधर हमने add किया था, adding and subtracting something और फिर इसको कर लिया था. Then when we have solved this one, A4 plus 4B4, it means it is also the same. Highest degree is 4. Highest degree is 4. But what we have done here it was the missing of middle term. Yeah, middle term ही missing थी. तो हमने इस middle term को complete कैसे किया था? If you remember, it is like this: a square plus b square. तो हमने कैसे इसको complete किया था? 2 of the formula into first term into second term. ये हमने ऐड किया था और इसका हमने ऑपोजिट, इसका रेसिप्रोकल भी साथ ही लिखा था, प्लस 2ab by adding plus 2ab and minus 2ab. मतलब इस तरह कंप्लीट कर सकते हैं. तो इधर भी हमने ये सेम ही किया था. This was the revision of the previous topic, and today I'm shifting to the B topic. Okay, and I will try my best to complete. और इससे relevant question जो थे, if you will take out page number, I'm opening my page. If you also please take out page number 106. Please take out page number 106. Please take out page number 106. Sum number 1. All parts are similar. All parts are similar. First part x4 plus 1 over x4 minus 3. इसमें भी एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग था. 3x4 प्लस, इन सब में डिग्री देख लीजिएगा. द हाईएस्ट डिग्री इज 4 here. x4, 3x4, a4, 4x4, x4 and x4. If the book is with you and the pencil or the pen is with you and the rough copy is with you, you can see by your own कि इन सब में जो कॉमन बात आ रही थी, जो हमने कॉन्सेप्ट किया था, कॉन्सेप्ट सीखा था, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइप दिस वन और फैक्टरिंग ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री 4, ये था हमारा टॉपिक जो हमने कल किया था. आज हमारा टॉपिक बी है. आई एम क्विटिंग टू टॉपिक नंबर 2. द टॉपिक इज बी टॉपिक. आई एम अगेन कमिंग बैक टू the same page. The page is page number 101 and the topic is factoring of the expression. Again, factoring of the expression. आपको ये समझ होनी चाहिए हम कर क्या रहे हैं. Expression of type x square plus p of x plus q. तो मैं इस टॉपिक को नाम दे देता हूं factoring. I'm giving the name to this. You can also write by your own with the help of pen or pencil on your book or up to you. Factoring quadratic polynomial with leading coefficient 1. I would explain you. Coefficient
COEFFICIENT coefficient, leading coefficient 1. Okay, how it could be? इस टॉपिक को अगेन भी आई एम राइटिंग हियर x square plus p of x plus q. This is our first term, second term, and third term. This third term is a constant. This is a constant. Now first term is this one. This first term is having leading coefficient. Coefficient यहाँ होता है my dear, जो यहाँ इस वक्त नहीं है. If it is not there, it means 1 is there. So leading coefficient is what? It is 1. यहाँ इन सभी questions में leading coefficient 1 आएगा. And why I'm saying it is factoring, mean factor बनाने हैं quadratic polynomial. हम इसे quadratic polynomial को कहते हैं. इसलिए कि जो लास्ट आपने किया था टॉपिक, उसमें आपने पढ़ा था डिग्री 4 वहां था a की पावर 4 या x की पावर 4 या l की पावर 4. यहां पढ़ेंगे x की पावर 2 या a की पावर 2 या l की पावर 2. सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 2 मींस क्वाड्रेटिक. आप उसे डिग्री 2 भी कह सकते हैं. अगर आप या फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक कहेंगे पॉलिनोमियल, ये भी ठीक है. अगर आप इसकी जगह कहें डिग्री 2 या डिग्री सेकंड, तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. आई होप आपको कॉन्सेप्ट हो गया. और ये इसकी कहलाएगी मिडल टर्म. ये इसकी मिडल टर्म कहलाएगी. तो मैंने बता दिया आपकी फर्स्ट टर्म ये है. फर्स्ट टर्म में आपका जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 ही आएगा. इन सब सारे क्वेश्चंस में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 आएगा, कांस्टेंट होगा, मिडल टर्म होगी, और इसमें जो डिग्री होगी वो 2 होगी. इस डिग्री 2 को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. आई होप इट इज क्लियर. ओके, अब इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं. एंड द सेम एग्जांपल आई एम सॉल्विंग फॉर यू. यही क्वेश्चन, और फिर मैं बुक के क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाऊंगा और आपको कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, उससे भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट दूंगा. सो द टॉपिक इज डिग्री 2 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. मीनिंग सेम, दोनों का मतलब सेम है. Here we have, my dear student, x square minus 7x plus 12. ये हमारे पास है. You are familiar, 12 is here constant. 12 is constant. This is our first term, और first term के साथ 1 understood है. तो इसका leading coefficient क्या हो गया? You can say in your heart, leading coefficient is 1. इसका leading coefficient 1 आ गया. और इसकी middle term ये आ गई. This is its middle term. ये मिडल टर्म आ गई. और इसका जो स्क्वायर है ये शो कर रहा है कि डिग्री 2 है, और हम इसे कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो here we will use the same formula, same work as we have done. You might have done, not might, but sure you have done in class 8. Class 8 में आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे. मिड टर्म ब्रेक करते हैं. तो मिड टर्म ब्रेक करने के हमारे पास 2 वे हैं. मैं दोनों वे आपको सिखा देता हूं. पहला वे तो वही बच्चों वाला तरीकेकार है. आप मिडिल टर्म क्या लेंगे? ये जो मिडिल टर्म है, ये दिस इज मिडिल टर्म. जो आपकी मिडिल टर्म है 7x, इस मिडिल टर्म को आपने सम करना है, और ये जो कांस्टेंट है इसका आपने प्रोडक्ट करना है. यू विल मेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन एंड यू विल मेक द सम ऑफ दिस वन. वन थिंग, हम इसके बच्चों वाले जो क्लास 8 में मेथड सीखा था वही करेंगे. इसके 12 के फैक्टर्स बना लेंगे. 1 12 are 12. ओके, तो 2 फैक्टर्स आ गए, 1 और 12. फिर 2 6 are 12, then 3 4s are 12, and that's all. We have now 6 factors are here. 1 12s are 12, 12 1s are 12, 2 6 are 12, and 6 2s are 12, 3 4s are 12, and 4 3s are 12. Now we need to choose one factor, 2 factor. हमने एक पेयर चूज करना है, whether this one pair, this or this. अगर हम 12 फर्स्ट पेयर यूज करते हैं, तो अगर हम 12 में 1 ऐड करें या 1 सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करने पर we'll get 13, सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 11 मिलेगा. तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7 नहीं आ रहा, तो हमारे पास ये फैक्टर जो है हम क्रॉस लगा देंगे. सेकंड फैक्टर हम लेते हैं. सेकंड जो पेयर है वो ये है 2 into 6. 2 into 6 मतलब 12 तो आ रहा है, 2 6 12 आ रहा है. अगर हम इसमें 2 में 6 ऐड करते हैं तो 8 आता है. अगर 2 से 6 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है 4 या -4. इट डिपेंड्स कि क्या कैसे आप कर रही हैं. 4 या
इसका मतलब है ये फैक्टर भी हमारे लिए यूजलेस फैक्टर हुआ। हम लास्ट फैक्टर की तरफ मूव करेंगे। वो क्या फैक्टर है हमारे पास, हम उस लास्ट फैक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। और लास्ट फैक्टर इज वी हैव, हमारे पास वो फैक्टर है, वी हैव दिस फैक्टर 3 into 4 इट्स 12। हमारे पास प्रोडक्ट आ गई, हमारे पास कांस्टेंट आ गया, प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। और 7 हमारे पास कैसे आएगा, विल टेक -3 into -3 -3 -4 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। इट मीन ये वाला पेयर जो है हमारे लिए करेक्ट पेयर आ गया, ये हमारे पास करेक्ट पेयर आ गया। ये तो वही प्रीवियस मेथड है, द सेम मेथड व्हिच वी यू हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। और सेकंड है हिट एंड ट्रायल मेथड। ये मेथड कहलाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। मैं थोड़ा सा इसको रिवीजन आपको दे दूं। हिट एंड ट्रायल मेथड भी यही मेथड है, सेम है, सिर्फ उसमें हमें फैक्टर्स नहीं बनाना पड़ते, हम एक एक करते हैं, एक एक करके यूज करते हैं। हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल में कहते हैं जैसे हम ट्रायल लेते हैं कि हमारे पास क्या है 2 6 12 तो आ गया, लेकिन -2 -6 करें तो हमारे पास 8 आता है, या 2 + 6 करें तो भी हमारे पास पॉजिटिव 8 आता है। मतलब ये तो ये सेम ही आ गया। और अगर 2 से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आ जाएगा, 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दें, प्लस कर दें तो 8 आ जाएगा। मतलब इस तरह हमारे पास ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये हिट हमने ट्रायल किया है, ये ट्रायल हमारा कामयाब नहीं हुआ तो हमने दोबारा एक और ट्रायल करते हैं। दूसरा ट्रायल हम क्या कर रहे हैं, दूसरा ट्रायल हम ये करेंगे, वही मेथड यूज करेंगे, -3 into -12 करेंगे, -3 into 12 कर देंगे। हम सिर्फ 3 into 4 करेंगे, 3 4 12, और फिर 3 - 4 इज इक्वल टू -7। इसका मतलब है ये हमारा ट्रायल ठीक हुआ, हमने हिट किया, ट्रायल किया, ट्रायल किया, हिट किया, मतलब इस तरह हमारे पास फैक्टर आ गए। तो बोथ द मेथड यू कैन यूज, आप दोनों ही मेथड यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू। somebody asked me, Oliver, mute yourself. Oliver, mute yourself. Okay, fine. Okay beta, तो हमने we have done this one. Now come to this, what we will do. I hope आपका काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। What we will do, we'll write the value. Now we will make the middle term, हम ब्रेक कर देंगे, मिडिल टर्म में हम इसको ब्रेक करेंगे। We'll also say middle term break, हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। हमने उसे कर दिया है x², इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1 है, मैंने पहले बताया था इन सब में 1 आएगा। -3x -4x, -3x -4x हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दी है, और +12 एज इट इज आ गया, एज इट इज सिर्फ हमने मिडिल टर्म को ब्रेक किया है। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हैं, या आप पेयरिंग उसकी बना सकते हैं, उसके फैक्टर्स बना सकते हैं। नाउ वी कैन टेक वन कॉमन फ्रॉम हियर, ये हमारे पास एक पेयर बन गया, एक पेयर ये हमारे पास ये बन गया। वी कैन टेक इस x² -3x से x कॉमन आ गया, तो वी हैव x -3 इज द रिमाइंडर। Similarly, what we have remainder here, what we can take the common, -4 is the common. -4 हमारे पास कॉमन आ गया, तो then again minus we have taken common, this minus will become plus, and similarly this minus will also become plus, -4 3s are 12. Now you can see कि हमारे पास फैक्टर डेवलप हो गया है, ये सेम फैक्टर है, ये फैक्टर सेम हो गया। हम इस फैक्टर से एक कॉमन ले लेंगे x -3, और फिर जो रिमाइंडर आ गया, जो आ गया वो हमने लिख लेना है x -4। इस तरह हमारे पास फैक्टर्स बन गए, 2 फैक्टर्स बन गए, और इसी 2 फैक्टर्स को हम कहते हैं फैक्टर्स बन गए, तो हम कहते हैं ये प्रोसेस आ गया हमारा, फैक्टराइजेशन हमारा हो गया है, हमने फैक्टराइजेशन फिर कर दी है। आई होप इट इज क्लियर। मेरा ख्याल है कि मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। आई होप मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। एक्सप्रेशन, यस, फाइन फाइन फाइन। एनी प्रॉब्लम? नो, फाइन, ओके। अब इसी का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, उसी पेज पर, पेज नंबर 105 मैंने खोल रखा है। आई हैव ओपन द सेम पेज 105। प्रिंस आर्थर इज सेइंग नो। बेटे नो व्हाट डज मीन नो? नो नहीं समझे, या कि व्हाट इज, प्रिंस आर्थर व्हाट इज द मैटर, अंडरस्टूड और नॉट? सर मैं वो प्रॉब्लम का कह रहा था कि समझ आ गई है, दोबारा से कराने की जरूरत नहीं है। ओके फाइन फाइन, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। जैसे मैं पूछूं आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। देन ओके, इसकी सेकंड प्रॉब्लम देखिएगा, x² + 5x - 36।
x square book, look in your book please. Now please look in your book. I'm doing solving from that side. X square plus 5x minus 36, page number 102, page number 102. What you will do here, आप इसको उसी तरह करेंगे. It is x square plus 5x. तो 5x को आप मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे. It would be like this, 9x minus 4x, and then you can take the common. And this is the clearing concept of the previous topic. ये previous topic का concept clear हो गया है. आपका previous topic का concept clear हो गया. ठीक है. Now please take out the page number 106. Exercise 5.2, page number 106. You will find question number 2 and all the relevant sums. First sum है x square plus 4x plus 48. इसमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट है आपको 1 नजर आ रहा है. आई होप मेरी बात आपको समझ आ रही है. सब में लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है और मिडिल टर्म आपने ब्रेक करनी है. मिडिल टर्म में सम करते हैं और 40 जो कांस्टेंट है उसमें प्रोडक्ट लेते हैं. ये सब इसी तरह ही सॉल्व किए जाएंगे. ये सारे इसी तरह किए जाएंगे. नाउ आई एम शिफ्टिंग टू टॉपिक नंबर 3. पेज नंबर, it's page number 102. 102 page number is, and the topic is factorization of the expression. Factorization of the expression of type ax square plus bx plus c. ये जो फॉर्मूला गिवन होता है ये इसकी जनरल फॉर्म होती है. जनरल फॉर्म, दिस इज जनरल फॉर्म. जैसे हमने पीछे की थी जनरल फॉर्म, और सिमिलरली ये भी जनरल फॉर्म है. इसमें और प्रीवियस में थोड़ा सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है? यहां जो आपको लीडिंग कोएफिशिएंट मिलेगा, लीडिंग कोएफिशिएंट लाइक एग्जांपल आई एम सॉल्विंग फॉर यू. एक एग्जांपल आपके सामने कर रहा हूं. 9x स्क्वायर प्लस 21x प्लस माइनस 8. अब प्रीवियस में जो आपको लीडिंग, यहां लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 9, और प्रीवियस में जो लीडिंग कोएफिशिएंट था वो 1 था. सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. ठीक है. और डिफरेंस क्या है? मिडिल टर्म उसी तरह ही आ गई है. मिडिल टर्म में आपने सम करना है और कांस्टेंट में आपने प्रोडक्ट बनानी है. और अब आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? वहां तो मिडिल टर्म कोएफिशिएंट आपके पास 1 था, तो यहां कुछ इस तरह करेंगे कि आपने कोएफिशिएंट को, लीडिंग कोएफिशिएंट को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है. यू विल मल्टीप्लाई द लीडिंग कोएफिशिएंट विद द कांस्टेंट. व्हाट यू विल गेट, आपको क्या मिलेगा? क्योंकि अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो वो गलत होगा. वहां आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट था 1, यहां लीडिंग कोएफिशिएंट 1 से ग्रेटर हो सकता है. यहां 1 से ग्रेटर. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. ठीक है, आप ठीक बता रहे हैं. सिर्फ मैं ये बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि जब 1 लीडिंग कोएफिशिएंट होगा तो फिर आप सिर्फ फोकस करेंगे प्रोडक्ट पर, उसके फैक्टर्स बनाएंगे. लेकिन जब आपके पास यहाँ 1 से ग्रेटर कुछ भी होगा, 2, 3, 4 एंड व्हाटसोएवर भी, 2 एनी नंबर इज देयर, तो आप क्या करेंगे? उस नंबर को आप कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. 9 8 72. 72 के अब आपने फैक्टर्स बनाने हैं. आप मल्टीप्लाई करें तो 72 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? आपके पास 21, ये वाला मिडिल टर्म आनी चाहिए. तो उसको हिट एंड ट्रायल के मेथड को मैं डायरेक्ट बता रहा हूं. अब आपके पास एक फिगर है 24 into 3. 24 into 3 72, इसका प्रोडक्ट आ गया. और 24 minus 3 करेंगे, you will get 21. In this way you have both the factors. आपके पास दोनों फैक्टर्स हैं. You will write it like this, 9x square plus 21 को लिखेंगे आप मिडिल टर्म को ब्रेक करके 24 minus 24x minus 3x, 24 minus 3x and minus 8. Then you will take the common from here. Okay, from here you are taking 3 is the common. 3, not only 3 बल्कि x भी आपके पास कॉमन आ गया. 3 3s are 9. 3 into 3 9. X is already common. Remainder is x plus 3 8s are 24 and x you have already taken common. So then you can take minus common from here, and minus is common. And what is common? Minus is common and no number is common. इधर सिर्फ minus 3x 8 है. तो जब कुछ भी कॉमन नहीं तो you can take minus 1. -1 you can take common. आप -1 कॉमन ले सकते हैं. -1 जब कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 आप कॉमन ले लेंगे. और अगर प्लस है तो प्लस लिख सकते हैं. अगर माइनस प्रेजेंट है तो देन मेक श्योर आपने माइनस आपने कॉमन ले लेना है. माइनस कॉमन लेंगे तो वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी? माइनस माइनस प्लस 3x माइनस माइनस प्लस 8. नाउ सी आपके ये दोनों फैक्टर सिमिलर फैक्टर्स हो गए. इनमें से एक फैक्टर कॉमन ले लें, 3x प्लस 8, और जो रिमाइंडर फैक्टर है 3x -1 आपका
रिमेनिंग आ गया, आपके फैक्टर्स बन गए। ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया, टॉपिक क्लियर हो गया। अगर टॉपिक क्लियर है तो प्लीज टेक आउट वंस अगेन पेज नंबर 106। प्लीज टेक आउट पेज नंबर 106, पेज नंबर 106, टेक आउट पेज नंबर 106, page number 106. You will find question number 3. Question number 3, parts are 8 parts are there. All parts are similar. In in all these parts, you will find first term having more than 2, more than 1. More than one mean you will multiply the leading coefficient with a constant, and then you will come to know. फिर आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास 5 minutes और हैं remaining, मैं आसानी से आपको आगे move कर सकता हूँ। We can easily move to the other one. Okay. Now the next topic is page number. If you'll move to the page number 103. Page number 103, and the topic is factorization of the type of expression. आपके पास यहाँ कुछ expression है, ये थोड़ा सा complicated है, लेकिन इतना आसान है, you will immediately get it. You will just take out, आप page number 103, take out page number 103. It's the last part of question number 3. What with the last part? No problem. Somebody asked on Zafar, no problem for that part. आप when you will solve it, आपके पास पहले ही अगर it is opened 5x minus 1 over x, ये पहले ही से x square मौजूद है, पहले ही x square मौजूद है. When you will solve it, बेटा, you will come to know. No problem. 5x 1 over x आपके पास पहले exist कर रही है, और जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है वो 2 ऑफ द फॉर्मूला और 2 सेकंड टर्म है. वेरी सिंपल, 2 ऑफ द फॉर्मूला 2 सेकंड टर्म है, क्योंकि लास्ट में भी 4 है, वो 2 का स्केयर बन जाता है, 2 का स्केयर बन जाएगा. ऑन ज़फर यू विल फाइंड नो प्रॉब्लम. आई एम श्योर, 100% श्योर के. वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, आपकी तरफ से रिप्लाई आ गया. ओके, नाउ प्लीज कम टू ये जो फैक्टराइजेशन है. ये फैक्टराइजेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यू विल फाइंड इट वेरी इजी. इट इज लाइक दिस. एक्स स्क्वायर, मैं इसका टॉपिक का नाम नहीं लिख रहा क्योंकि नाम आप पढ़ रहे हैं उधर से. एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 माइनस 144. नाउ लुक एट दिस फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. अगर ऐसी एक्सप्रेशंस हो तो देन व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? अभी तक आपने सिंपल फैक्टराइजेशन की, ये लग रहा है कि हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन है, तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सिर्फ आपने देखना आपके पास लास्ट टर्म क्या है. आपके पास लास्ट टर्म कांस्टेंट है, कांस्टेंट इज प्रेजेंट. अब ये आपके पास कुछ ऐसी टर्म है जो प्रोडक्ट है. अगर हम इन दोनों प्रोडक्ट को इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक लंबी पॉलिनोमियल आपके पास डेवलप होगी. हमने उस तरफ मूव नहीं करना. जितना क्वेश्चन को आप लॉन्ग करेंगे, आप समझे, उतनी एम्बिग्विटी डेवलप होगी. आपके पास चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप गलती कर सकें. तो अगर हम फर्स्ट 2 टर्म्स पर कॉन्सेंट्रेट करें, फर्स्ट 2 टर्म्स क्या हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और यहां भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है. ये दोनों टर्म सिमिलर हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x. हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेंगे. सब्स्टिट्यूशन मेथड. हम इनकी जगह कुछ और सब्स्टिट्यूट कर देंगे. कैसे? लेट सपोज कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 4x इधर भी है और इधर भी है, दोनों प्रोडक्ट में मौजूद है. हम इसकी जगह हम कोई एक वेरिएबल इसको सपोज कर लेंगे. x पहले एग्जिस्ट करता है, हम x नहीं लेंगे. आप a ले लें, b ले लें, c ले लें, x ले लें, y, सॉरी x नहीं लेंगे, x के अलावा कुछ भी ले लेंगे. सपोज करते हैं हम y ले लेते हैं. हमने इस पूरी इन दोनों की जगह y ले लिया. अब ये वैल्यूज कैसे बन जाएगी? अब यही टर्म कुछ इस तरह बन जाएगी. इन दोनों की जगह आपने y सब्स्टिट्यूट कर दिया, y माइनस 5 एंड देन y माइनस 12 माइनस 144. रिड्यूस हो गई. अब इनको मल्टीप्लाई कर दें. अब इन दोनों को प्रोडक्ट लेने. टेक द प्रोडक्ट ऑफ दिस वन. फर्स्ट यू विल मल्टीप्लाई y विद द टर्म y into y square minus y into 12y. Similarly then minus 5 into this minus 5y, and then minus minus plus, and 5 12s are 12 5s are 60 minus 144. आपके पास कुछ टर्म इस तरह डेवलप हो गई है, कुछ टर्म इस तरह डेवलप हो गई है. ठीक है, आप इसको और रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे रिड्यूस कर देंगे? y स्क्वायर और इन दोनों को सिमिलर कर दें, क्या हो जाएगी? माइनस 17y. देन इन दोनों को कांस्टेंट्स को कंबाइन कर ले. जैसे आपने इनको कंबाइन कर लिया है, उसी तरह आप इसका कांस्टेंट्स को भी कंबाइन कर लें, जो कांस्टेंट आ जाएगा माइनस 84. अब आप देख लीजिए आपके पास वो ही सारी टर्म आ गई, लेकिन क्या हुआ? या लीडिंग कोएफिशिएंट क्या आ गया? 1.
अब आप फिर इस पर फोकस करेंगे, मिड टर्म को आप ब्रेक करेंगे, 84 के फैक्टर, इसको प्रोडक्ट लेंगे, इसको सम लेंगे, इसको सम लेंगे, इसको प्रोडक्ट लेंगे, देन व्हाट विल हैपन, यू विल गेट बाय द एंड सेम, आपको सेम आंसर मिलेगा जाके। लेकिन एंड पे आपने क्या करना है, एंड वाला सीन जरा कंसंट्रेट कीजिएगा। एंड पे आपने इसको क्या करना है, इसको वापस क्या करना है, आपके पास आंसर कुछ इस तरह आएगा, आई एम राइटिंग द आंसर फॉर यू, आपके पास आंसर आएगा कुछ इस तरह, फैक्टर्स बन जाएंगे, फैक्टर्स आपके पास कुछ इस तरह बनेंगे, y माइनस 21 एंड y प्लस 4, ये फैक्टर्स बन गए। आपने y की जो सपोज वैल्यू थी, जो सब्स्टिट्यूट की थी ये वाली वैल्यू आप वापस पुट कर देंगे लाइक दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, और यहां भी इसी तरह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एंड देन दिस इज योर, आपका यही आंसर होगा। अगर फर्दर इनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकी तो प्रोडक्ट बना लेंगे, अगर नहीं हो तो यही आंसर होगा, अगर प्रोडक्ट बन रहा होगा तो आप प्रोडक्ट बना लेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। और लास्ट भी आपका इसी तरह ही है, वो भी इसी तरह 5 और 6, डू बाय योरसेल्फ, टाइम खत्म हो गया, डू बाय योर ओन, आप इसे करें, और मुझे कल, मुझे नेक्स्ट वर्किंग डे में, हमारा 22 वर्किंग डे होगा, आप मुझे बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा, ताकि मैं हम कर सके। आई होप कि आप 5.2 कवर कर जाएंगे, कंप्लीट कर जाएंगे। वन क्वेरी इज देयर, होमवर्क इज टू कंप्लीट दिस वन बेटा। देखें, अगर आपके पास